یہ हमें पता है कि हम कैसे गुजार रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। हम किसी को दुख सुनने वाला है भी नहीं, फिर हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह मालिक है, बस अल्लाह देगा, नहीं तो मौत तो है ना, मौत तो आ जाएगी। बच्चों का सदका, ये नहीं हम कहते हैं बच्चों का सदका दे रहे हैं, हम खाने के लिए तैयार हैं, हमें कुछ नहीं है, वो भी तो हमारे अपने बच्चे हैं ना। अल्लाह जिसको दुख देता है वो तो इंसान है ना, बड़े बड़े अमीरों को भी दुख है, गरीबों को भी है। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خدمت خلق ٹی وی۔ ناظرین، آج میں ایک ایسے ماں باپ کے پاس، ایک ایسے بزرگ فیملی کے پاس موجود ہوں، ایک ایسی، یہ بھی کسی کی ہماری مائیں بھی ہوتی ہیں، میرے سمجھ لیں دادا دادی بھی سمجھ لیں، میرے ماں باپ بھی سمجھ لیں، میں انہی کی عمر کے لوگ ہیں جن کے گھر میں اس ٹائم آئی ہوں، اور سفید پوش لوگ، نہایت ہی حقدار لوگ۔ میں تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو صرف اتنی گزارش کروں گی، اس ویڈیو کو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، تاکہ کسی دیکھنے والے بہن بھائی تک یہ ویڈیو پہنچے اور ایسے حقدار لوگوں کی وہ مدد کریں۔ ناظرین، ایک بزرگ اور ایک بوڑھی اماں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے ہی دست ادب جوڑ کے میں ان سے بات کرتی ہوں، ان سے گفتگو کرتی ہوں، کیونکہ ایک قابل احترام ہے، یہ مجھ سے بڑے ہیں۔ آئے ان سے ان کے حالات پوچھتے ہیں، ان سے ان کا نام پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا چاچو؟ میرا نام اقبال حسین ہے۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 5 بچے ہیں، 2 بیٹیاں تھیں، ان کی شادی کر دی ہے، اور ایک بیٹا ہے؟ ایک بیٹا ہے اور ایک بھائی ہے۔ یہ 2 کمرے ہیں ان کے اپنے اپنے ہیں۔ ہمارے پاس ایک جو ہے چھوٹے سے ایک جھوپڑی نما کوٹھی ہے، اس میں ہم میاں بیوی دونوں بوڑھے رہتے ہیں۔ بس ہمارے معذوری کی وجہ سے میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو ہر ماہ کے لیے کچھ راشن وغیرہ کی میں تعزیت آپ کو دعائیں دوں گا، اور ویل چیئر بھی مجھے سخت شدید ضرورت ہے، کیونکہ میں آنے جانے میں مجھے تکلیف ہوتی ہے، میری ایک بالکل ٹانگ بیکار ہو گئی ہے۔ تیسرے نمبر پہ میرا اپنا ذاتی گھر بھی نہیں ہے، اگر ہو سکے مہربانی تو آپ میرا گھر بنوا دیں، آپ کو دعائیں دیں گے۔ ناظرین، بزرگ کہہ رہے ہیں کہ میرا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے۔ وہ ویڈیو میں نے ویڈیو بنانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہماری ویڈیو نہ بنانا باجی، ہم سامنے نہیں آ سکتے۔ ان کے جو بھائی ہیں وہ بھی بزرگ ہیں، ان کی بیوی بچے، ان کی فیملی ان کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک ان کے بیٹے کا کمرہ ہے، ان کے بھی 5 بچے ہیں۔ آپ کے بیٹے کے 5 بچے ہیں؟ 5 بچے ہیں، 5 بچے ہیں میرے بھائی۔ اور آپ کے بیٹے کے کمرے میں آپ نہیں رہتے، الگ رہتے؟ نہیں، جوان بیٹے کے کمرے میں کیسے رہ سکتے ہیں ہم؟ علیحدہ یہ چھوٹی جھونپڑی نما کوٹھی ہے، اس میں رہتے ہیں۔ ہاں، آپ جو ہے ہمیں کچھ دینا چاہتے ہو تو ہمیں راشن کی صورت میں ہر ماہ دیں تو ہم آپ کے بہت شکر گزار رہے ہیں۔ کوئی حکومت، کوئی ادارہ، کسی کی طرف سے آپ کو کوئی مدد ملی ہے؟ کچھ نہیں دیتا کچھ، کوئی حکومتی ادارہ، کوئی NGOs وغیرہ ہمیں کچھ نہیں دیتی۔ 2010 کے سیلاب کے بعد میرا مکان گر گیا، اب ہم چھوٹی سی جھوپڑی ہے کوٹھی، وہ بھی گرنے والی ہے، اس کا بھی کوئی حال نہیں۔ ناظرین، یہ بزرگ ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، بڑے ہیں۔ بڑی مشکل سے یہ پنجاب کے لوگ ویڈیو میں آنا، اور بڑی مشکل سے یہ آتے ہیں اور بڑی مشکل سے اپنے حالات بتاتے ہیں۔ ایک بوڑھا بوڑھی، میرے پیچھے آپ یہ کوٹھی بھی دے سکتے ہیں، شدید سردی ہے،
آپ کو پتہ ہے बुजुर्गों को घुटने का मसला होता है और इस शदीद सर्दी में घुटनों का मसला है। मसला है, ये दोनों है ना, ये रात को नींद नहीं आती तो ये दर्द होता है। सुबह नमाज पढ़ने के लिए 4 बजे उठती हूँ, 5 बजे नमाज पढ़ती हूँ कि ना टांगे काम जो नहीं करती, काम करें तो आगे। अम्मा जी आपका क्या नाम है? तनवीर फातिमा। तनवीर फातिमा। आप बूढ़ा बूढ़ी इधर ही रहते हैं? हाँ, इधर ही रहते हैं। कोई हुकूमत की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से कोई मदद नहीं मिली? आते हैं और लिख भी जाते हैं और देते कुछ नहीं है। आते भी हैं, बातें करते हैं, लेकिन वादा करते हैं, पूरा नहीं करते बस। और आपने अपनी बेटी को बुलाया है मुझे, आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं इतना ही कर सकती हूँ, आपकी आवाज बन सकती हूँ। आप भी मेरी बेटी हैं, बेटियों की तरह हैं। आपसे उम्मीद लगाती हूँ कि इंशाल्लाह आप हमें कोई ना कोई। इंशाल्लाह ताला। देखें, कुल्लू नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, मरना है, मौत बरहक है। कोई देखने वाला बहन भाई अगर आपके लिए किसी भी किस्म की मदद कर दे, ये आपकी बेटी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। बस मेरी ये दुआ है कि कोई देखने वाले बहन भाई को, शदीद सर्दी है, इस कच्ची सी कोठी में ये लोग रहते हैं, कोई देखने वाले बहन भाई के दिल में अल्लाह रहम डाल दे, इन बुजुर्गों की मदद करें। ये सफेद पोश लोग हैं, कोई मेरा देखने वाला भाई, कोई मेरी बहन जो बाहर रहते हैं, आपके भी माँ बाप होंगे, किसी के जिनके पास नहीं होते उनसे पूछें। ये बूढ़ा बूढ़ी, आपको पता है सफेद पोश घराना है, बेशक पर्सनली यहाँ आए, विजिट करें, ये जगह देखें, इनके हालात पूछें। मैं ऐसे किसी की वीडियो नहीं बनाती। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, ये बेचारे किन के सामने रोएं, ये किससे मांगे, ये किसके सामने गिड़गिड़ाएं? देखो ये पाकिस्तान है, ये किसी की नहीं सुनता। ये हुकूमत है अपनी, उसको पड़ी हुई है, कुर्सी की है, और जो कुछ मिलता है बाहर से भी मिलता है तो वो अपने काम, कोई आता नहीं, कोई सुनता है, कोई आता है तो बस कह के चले जाता है। कभी किसी ने इधर नजर भी नहीं डाली कि इस लोगों के साथ क्या हो रहा है। दवाई है, कोई चीज है, कुछ भी है, नहीं है। अब आप देखने वाले दर्द है ये बाजू में, ये दर्द है, अभी दर्द पे काम भी करना है, क्या करें फिर? बुजुर्ग हो गए, क्या काम कर सकते हैं? अगर हर देखने वाला कोई बहन भाई आपको हर महीने में बर्तन मांजने के लिए वो भी ताकत नहीं है, जो काम पैसा देते हैं वो काम तो करवाते हैं, हमसे वो भी नहीं होता। शुगर भी है, यरकान भी हुआ है, यरकान की मरीज हूँ, फिर मैं काम किसी के घर में नहीं कर सकती। अगर जो काम करवाता वो तो अपनी मर्जी करता है। आज वो वक्त भी नहीं रहा। आज ये जमाना जो है, ये नए नए ड्रामे बन रहे हैं, कोई बच्चे उठा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहते किसको आने ना दो अंदर, किसी के घर में जाए आने भी नहीं देते। वो कहते हैं कि हाँ पता नहीं कौन है, कैसी है, क्या करती है। इसी वजह से किसी से कोई हम कुछ मांग के खा भी नहीं सकते, फिर हम क्या करें? नाजरीन, ये बुजुर्ग हैं, और आपको अगर कोई देखने वाले बहन भाई अगर आपको हर महीने कुछ कर दे तो आप उनको उनके बच्चों को उनको दुआएं दूंगी। हमारा कोई आसरा नहीं है। बच्चा है वो मजदूर है, वो क्या करता है हमारे लिए? अपने उनकी शाम की सुबह की रोटी पूरी होती है, तो फिर हम क्या करें? जो भी किसी भी इंसान हमारी मदद करे, उन्हें बच्चों को दुआएं दूंगी, और अल्लाह के प्यारे हबीब उनको इतनी दे कि उनको किसी चीज की जरूरत ना पड़े। ये हमें पता है कि हम कैसे गुजार रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। हम किसी को दुख सुनने वाला है भी नहीं, फिर हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह मालिक है, बस अल्लाह देगा, नहीं तो मौत तो है ना, मौत तो आ जाएगी। अल्लाह ना करे, आप ऐसे ना करें, अल्लाह ना करे। नाजरीन, ये बुजुर्ग हैं, इस कमरे में रहते हैं, कोई देखने वाला बहन भाई किसी के दिल में अल्लाह रहम डाले, इनको कमरा डलवा दें, या हर महीने अपने माँ बाप समझ के बच्चों का सदका, ये नहीं हम कहते हैं बच्चों का सदका दे दें, हम खाने के लिए तैयार हैं, हमें कुछ नहीं है, वो भी तो हमारे अपने बच्चे हैं ना, उनका सदका दे दो, हम खाने के लिए तैयार, हमें कुछ नहीं होता। जो अल्लाह जिसको दुख देता है वो तो इंसान है ना, बड़े बड़े अमीरों को भी दुख है, गरीबों को भी है। मैंने आपको पहले कहा कि कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मरना हर किसी ने है। अगर अपने बच्चों का सदका आप हर महीने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कमाई के 3 हिस्से करें, 2 खुद रखें, एक ऐसे सफेद पोश घराने को दें जिसे अल्लाह, अल्लाह के रसूल की आल भी राजी हो। मस्जिद में भी सीमेंट की बोरी उस वक्त तक दें जब कोई हकदार ना हो। इस खिदमत खल्क के लिए ये बहन, ये आपकी बेटी इतना ही कर सकती है। आगे आप खुद देखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सब तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। मैं किसी के दिल में उसकी पूरी करे, आमीन आमीन। मैं इतना ही कर सकती हूँ, मैं वीडियो बना सकती हूँ। नाज़रीन, तमाम देखने वाले बहन भाइयों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इस वीडियो को शेयर किया करें, इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह के लिए ऐसे लोगों का सहारा बने। वो हुकूमत
ان لوگوں کی بس ایسے لوگوں کا آسرا بنے, میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی. میرے لیے قابل احترام ہے, بزرگ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. اس چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ نگہبان. اللہ